ओके फर्स्ट ईयर। अब आपका अगला जो नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट है वो है वन एक्ट प्लेस। और जो पहला वन एक्ट प्ले आपका है वो है हीट लाइटनिंग। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वन एक्ट प्लेस क्या होते हैं, उनको क्यों ये नाम दिया जाता है, और वो दूसरे जो प्लेस एक रेगुलर प्ले होता है उससे वो कैसे डिफरेंट होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वन एक्ट प्ले बेसिकली ऐसा प्ले होता है जिसमें ओनली वन एक्ट होता है। और इसमें जो दूसरे आम प्लेज होते हैं उनमें मोर देन वन एक्ट्स होते हैं। तो इसमें चूँकि एक ही एक्ट होता है इसलिए इसको वन एक्ट प्ले कहा जाता है। और इसमें एक या इससे ज़्यादा सीन हो सकते हैं और ज़रूरी, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होती, इसकी टाइमिंग बहुत थोड़ी होती है। और ये जो इसको फ्लैश ड्रामा भी कहा जाता है, ठीक है। तो a one act is a play that has only one act, as distinct from plays that occur over several acts. One act plays may consist of one or more scenes. In recent years, the 10-minute play known as flash drama has emerged as a popular subgenre of the one act plays. And basically ड्रामा की जो इट सेल्फ ओरिजिन है वो एंशियंट ग्रीक्स से ही निकला हुआ है, ठीक है। शेक्सपियर ने जो इंग्लिश लिटरेचर में जो द बिगेस्ट ड्रामाटिस्ट है उसने भी एंशियंट ग्रीक से ही ये ओरिजिन लिया था ड्रामा का। तो ये जो वन एक्ट प्लेज हैं ये भी बेसिकली अगर इनका हिस्टोरिकली आप ओरिजिन तलाश करते हैं तो ये एंशियंट ग्रीक्स की तरफ ही जाते हैं। सो आपके जो सिलेबस में ये वाला वन एक्ट प्ले है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके डिफरेंट थीम्स और इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स आपको आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट दोज टॉपिक्स। ओके, अब हीट लाइटिंग की मैं थोड़ी सी आपको ओवरऑल इसका एक छोटी सी सिनॉप्सिस बता देती हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ है। There was a bus station along some forsaken highway. The weather was not good. There was downpour with lightning and thunder. All of a sudden, a middle-aged man entered the bus station. After a short while, a young girl came over there. She looked terrified. She was very frightened. In fact, she wanted to seek the help of the man against another man who was chasing her. She then told her story to the मैन कि वो लड़की आती है और वो डरी हुई है और वो बंदा जो है उसकी हेल्प करना चाहता है कि तुम क्यों डरी हुई हो। तो शी इज़ टेलिंग हिम दैट आई एम वेरी अफ्रेड। शी एडेड दैट शी वाज कमिंग फ्रॉम अ पार्टी एट some distance from the bus station. When she was coming back from the function, her car ran out of gas. She saw another car standing in the distance. A man was standing nearby the car and was pulling the dead body of a girl, as he thought, out of the car. The man, having seen the girl, began to run after her. She was in danger. She at last was able to reach the bus station to save herself from the man. She had now lost her flashlight. She was afraid that the man would chase her to the bus station. That is the reason she locked herself in the ladies' room in the bus station. The man in the bus station suggested to the girl that she should have reported the matter to the police, but she was too scared to have an idea of the details of the horrible accident. Meanwhile, a second man came over and asked to open the door. Having found the door open, he stepped into the room and began to look for the third person in the bus station, as he smells that there is someone else also in the bus station. The girl came over there and sat on a bench with the man. They began to talk about the bus and its timings. The girl was still terrified, but she pretended as she were afraid of the storm, क्योंकि वो दूसरे आदमी से अपनी सिचुएशन जो है वो छुपा रही है। उसने सिर्फ पहले आदमी को बताया दैट शी इज़ अफ्रेड एंड शी हैड एन एक्सीडेंट, शी saw that incident of murder. The second man admonished the girl to control her fear
In fact, the girl did not want to accompany him as she was of the view that he was the man who had chased her on the road. जो प्ले राइटर है वो भी इस तरह से ऑडियंस को कन्वे करना चाह रहा है कि वो दूसरा आदमी ही असल में किलर है, जबकि ऐसा नहीं है। तो गर्ल भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ऑडियंस का इशारा करवाती है। However, when he was gone, she came to know that he was not the man she was afraid of. In fact, the first man was the real person who had pursued her. Meanwhile, a dog happened to appear over there and forced the man to take to his heels. Finally, the girl learned the actual story and saved herself from the killer. And she actually came to know about the reality of the killer when she saw her own flashlight in the hands of the first man who was the killer. बेसिकली ये एक मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा ऐसा एक ड्रामा होता है कि जिसमें तशद्दुद होता है, खौफ होता है और जज्बातियत होती है और समटाइम्स एक्सट्रीम लेवल के जो वायलेंस के एक्ट्स होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, ज़ख्मी करना हो गया, इस किस्म की चीज़ें इस तरह के प्लेज़ में दिखाई जाती हैं। तो इसमें ये सारे इसके नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। वायलेंस भी है, सस्पेंस भी है, टेरर भी है और इमोशंस भी हैं और सीन ऑफ मर्डर भी दिखाया गया है, ठीक है। और ये एक स्टिल जो है थ्रू आउट द सीन जो है, ये ड्रामा जो है शुरू से लेके एंड तक एक सेंटिमेंटल और टेंस किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अपने रीडर्स के लिए, और रीडर जो है वो एंड तक उसकी ग्रिप में रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, सस्पेंस में रहता है। और रीडर्स को भी एंड तक नहीं पता चलता कि फर्स्ट मैन जो है वो एक्चुअल में किलर है। तो राइटर की इतनी ज़्यादा ग्रिप है इस चीज़ पे।